We will share the word with Sonali is on the line. Yes, brother. Okay. So on Sunday we saw that how since Jesus has called us to salvation, we must continue to obey him. और हमने रविवार के दिन सुना था कि कैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें बचाया है, हमें उसकी आज्ञा को मानना है. So once we are saved, it is such a privilege to follow the Lord. और एक बार जब हम बचाए जाते हैं तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर का पीछा करें. This means that God has called you and me specifically. इसका मतलब ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग अलग बुलाया है. There are so many people in this world, God has chosen us. और बहुत सारे लोगों में से परमेश्वर ने हमें चुना है. And he has given us a heart of repentance and to seek after him. और प्रभु ने हमारे अंदर एक पश्चातापी हृदय दिया है कि हम उसको खोजें. And because of that, of this great thing, this is the greatest thing that can happen in our life, and because of this great thing, we must never lose heart. और ये बड़ी महान बात जो है हमारे जीवन में हुई है और इसी के कारण हमें हमारे हृदय को हल्का नहीं करना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है. All the godly men in the Old Testament women were called by God, but now in the New Testament we have a much greater calling. और पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए थे बहुत सारे ईश्वरीय लोग हैं, पर हम अब हमारे लिए जो है नए नियम में बहुत बड़ी बुलाहट है. So all the more we must never give up or get discouraged, but always cling on to the Lord. हम में से किसी को भी हियाव नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के पीछे चलते जाना है. And we must always obey whatever the Lord tells us. और हमेशा आज्ञाकारिता में रहना है, परमेश्वर जो कुछ भी हमसे कहते हैं उसमें. Leave the future to him. अपना जो भविष्य है उसके हाथों में सौंप देना है. God will work out all our earthly things according to his plan and purpose. परमेश्वर अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपने ही समय पर परमेश्वर उन कामों को करेंगे आपके लिए. Our duty is to listen to him and obey his word. हमारा काम ये है कि उसके वचनों को सुनना और उसकी आज्ञा का पालन करना. Then only I show that I have faith. और इसी से हम बता पाएंगे कि हमारे अंदर विश्वास है. When God calls us, he doesn't give us quick answers and give us all sort of answers to all our problems and all our inquiries about the future. Nothing. He doesn't tell us. He tells us, "You walk with me today." और जब हम प्रभु हमें बुलाते हैं तो हर एक समस्या का समाधान बहुत जल्दी नहीं आ जाता है, या हमारे भविष्य के लिए हमारी जो चिंताएं हैं, सोच है, उसके जवाब हमें नहीं मिल जाते हैं, पर प्रभु हमें सिर्फ ये कहता है कि आज तुम्हें मेरे पीछे चलना है. This is how God deals with his own people. और यही तरीका है परमेश्वर का अपने लोगों से बातचीत करने का. If God gave us whatever we wanted, as soon as we asked, what would happen? We would forget about God and we would run after all the things that God, the blessings, the earthly blessings God has given us. और यदि हमें सब कुछ मिल जाए जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, वो समय पर हमें मिल जाए, तो पता है आपको क्या होगा? ये होगा कि हम अपने पृथ्वी पर की चीजों पर ज्यादा मन लगाने लगेंगे, आशीषों पर मन लगाने लगेंगे और प्रभु को भूल जाएंगे. And that is going to be a great loss, because God himself, will lose God, who is the savior of the whole world and who is the creator of the whole world. और ये बहुत ही ज्यादा हानि हो जाएगी हमारे जीवन के लिए, जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसको हम खो देंगे इस कार्य के द्वारा. That is why we always have faith and also patience. और इसी कारण हमारे अंदर जो है हमेशा धैर्य होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए. Our Christian walk is a long walk every day of our life, and we have to patiently wait for the Lord through all the difficulties and the problems and uncertainties of life. और एक मसीही चाल ऐसी होती है, वो बहुत लंबी होती है. हम परमेश्वर के लिए रोज चलना है, उसमें बाधा और मुसीबतें भी आएंगी, पर हमें चलना है. Verse 35 of Hebrews chapter 10. इब्रानियों का 35 वचन. 10 verse 35. It says, "Therefore do not throw away your confidence, which has great reward." For the 36, "For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised." Brother, chapter? Chapter 10 verse 35 and 36. Okay. इब्रानियों का 10 अध्याय, उसका 35 और 36 वचन.
सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। You know about the heroes of faith in Hebrews chapter 11. They all were called by God and they were patiently waited till they got the promises of God. और आपने इब्रानियों की किताब में विश्वास के नायकों को देखा है, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया है और वो पीछे चले हैं प्रभु के। Verse 37 and 38 says, "For yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and he shrinks back, my soul shall have no pleasure in him." 37 और 38 वचन कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। We sang that song that there are only 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी. Our life is so short. और हमने एक गीत गाया है कि 4 दिन की जिंदगी और 2 दिन की है जवानी। ये जो जीवन है हमारा बहुत ही छोटा है। Most of us, our lives are already over, and Jesus Christ is coming soon. We don't know how long, how soon He'll come. और इसमें से तो हमने कुछ समय तो जी ही लिया है, और हमें नहीं पता है कि कब प्रभु आ जाएंगे। So that is why we have to be patient for this short time, maybe 10 years, 20 years, 30 years, because for all eternity we have to spend millions, crores of years. और इसी जीवन में जो हमारे पास है, या शायद 10, 20 या 30 साल, इसी को हमें धीरज से जीना है, और उसके बाद अनंत जीवन जो है करोड़ों अरबों सालों का, वो हमें मिलेगा। So we must not compromise with the world and the sin for this short time. We must be faithful to the Lord in spite of all the trouble that we go through. और इसलिए पाप से समझौता या संसार से समझौता नहीं करना है। हमें जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। Verse 38 says we must live by faith. और 39 वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा जिएंगे। Yes. What does it mean to live by faith? और इसका मतलब क्या है विश्वास के द्वारा जीना? Yes, God is faithful and I believe His promises, and whatever happens, I'm going to trust Him and I'm not going to leave Him. कि हमें विश्वास करना है कि प्रभु जो है वो विश्वास योग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, कुछ भी हो चाहे मेरे जीवन में, मैं उसके पीछे चलूंगा। What will happen to us if we go back to the world? क्या होगा उससे कि अगर हम वापस संसार में पीछे लौट कर चले जाएं? 39 says, if we are not those who shrink back to destruction, but those who have faith to the preserving of the soul. 39वां वचन, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। So God, brothers and sisters, always tests each one of us. बहनों और भाइयों, परमेश्वर हम में से हर एक को परखते हैं। Whether we are going to trust God for all our full lives, or we are going to give up and compromise or go after the world and live like worldly people. कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं या हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते और अपने संसार में वापस लौट जाते हैं। So God tests us by sending, doing things very slowly in our lives. और इसलिए परमेश्वर जो है हमें परखते हैं, उन सब प्रार्थनाओं का हमें जवाब देते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं उसको देने के लिए। He does not tell us much about the future. और हमें भविष्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं। He only tells us just be close to Him and be obedient to Him. वो सिर्फ कहते हैं कि मेरे करीब रहो और मेरी आज्ञाओं को मानो। When God called Abraham at the age of 75, He just told them to leave the city and go to a certain place, go to the land of Canaan. और 75 साल की उम्र में जब अब्राहम को बुलाया गया, तो परमेश्वर ने उसे बस आज्ञा दी कि कनान देश में चले जाओ। And Abraham obeyed. और अब्राहम ने उनकी आज्ञा का पालन किया। You know, it is not easy to live like a stranger in a different country, and there are so many problems, and so many people can harass you, and he got so much of harassment everywhere, but he still stuck to God. और आसान नहीं होता है किसी दूसरे देश में जाकर रहना, जहाँ पर अजनबियों की तरह रहना, जहाँ पर आपको लोग सता रहे हैं। उन्होंने बहुत सतावट सही है अब्राहम ने। He had to face famine, difficult people. He had to go to Egypt. He had to come back. Then God tested him with his son. So many tests God gave him. और बहुत सारी परख परमेश्वर ने उनको दी थी। अलग अलग देशों में उनको जाना पड़ा, इजिप्ट जाना पड़ा, और बहुत सारी सतावट उनके जीवन में थी। There are so many delays, and ultimately, at the age of nearly 100, he got the child.
और बहुत सारी देरी भी थी उनके जीवन में, पर आखिरकार 100 साल की उम्र में उन्हें एक बेटा हुआ। Same thing with his son Isaac. He also had to learn to have patience and trust God. और उनके बेटे का नाम इसहाक था, और वो भी परमेश्वर के पीछे चलने वाला और उनको मानने वाला था। For them, God was the most important thing in their life. They walked with God and wanted to please God. और परमेश्वर उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थे, वो परमेश्वर के साथ चले और आज्ञा मानी। They accepted all the delays that God gave in their life. जितनी भी देरी प्रभु ने करी उनके जीवन के लिए, उनकी प्रार्थनाओं में उन्होंने स्वीकार किया, And because of that, God was pleased with them. और इसी के कारण परमेश्वर उनसे बहुत खुश थे। They had so many faults also, but God really corrected all their faults over all this period of time. और बहुत सारी खामियां भी थी उनके जीवन में, पर फिर भी परमेश्वर ने उनको थामे रखा। You know about Jacob also, Esau, Isaac's son. He was a little cunning type of person, but then God also met with him, and because he clung to God, God changed his life. और ऐसे ही जेकब के साथ भी था, वो थोड़े चालाक थे, पर परमेश्वर ने फिर भी उनको बचाया और उनके पास लेकर आए, Because he never left God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा कभी भी, He did not make any hasty decisions. और कभी भी ऐसे असंयम होकर निर्णय नहीं लिए। His twin brother was Esau. और उनका जो जुड़वा भाई था ईसौ, He already went and married two unbelievers against the wishes of his parents. और उन्होंने पहले से ही 2 अविश्वासी लड़कियों से शादी कर ली थी, And then again he married for the third time. और तीसरी बार फिर से विवाह किया। Because of that, Isaac and Rebecca were very unhappy with his marriages. और इसी के कारण इसहाक और रिबका जो थे बहुत ही निराश हो गए थे ये सुनकर। But Jacob he didn't make any quick decisions. पर जेकब ने कोई भी एकदम तुरंत निर्णय लेने वाला नहीं था वो। You know when he got married, आपको पता है कब उनका विवाह हुआ? he had to go all the way to Haran, that is his mother's brother's house, to get married. और उनके माँ के भाई के घर पर वो गए थे, वहां उन्होंने विवाह किया था। Do you know when he got married? At what age? और कौन सी उम्र में उनका विवाह हुआ था, क्या आपको पता है? Nearly 80 years old. लगभग 80 साल की उम्र में। Just think of that. सोचिए इस बारे में। I tried to calculate it because when Jacob, when he was old, he went to Egypt. He told Pharaoh he was 130 years old. Sorry, brother. When Jacob, during the time of famine, he went to Egypt. और जेकब जो था, जब इजिप्ट में था, तब वो 130 वर्ष का था। At that time, his son Joseph was around 32 years old. और उनका जो पुत्र था जोसेफ, वो था 32 साल का। So you know when Joseph was born, when Jacob was around 98 years old. और जब वो उसका पुत्र जब पैदा हुआ था, तो वो 98 वर्ष के थे। We can imagine how late Joseph was born. और आप क्या समझ सकते हैं, इस बात को सोच सकते हैं कि कितनी देरी से उनका पुत्र हुआ। And Joseph was born in the land of Laban, that is in Haran, and Jacob had lived there for 20 years. और जेकब जो था वो हारान की देश में पैदा हुआ था, तो वो जब 28 वर्ष का था। So at the age of 78 or 79, he really got married first to Leah. He went there left his hometown and went to Haran. और फिर उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, उसके बाद वो हारान गए थे। So in spite of all these delays, Jacob had a heart for God. और इन सब देरी में परमेश्वर जो जेकब थे, वो परमेश्वर के करीब थे। He did not leave God. उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं था। He did a lot of wrong things, but then God humbled himself. God humbled him, and he repented and he turned to God. उन्होंने गलत चीजें जरूर की थी, पर उन्होंने परमेश्वर से पश्चाताप किया, माफी मांगी और फिर से जीवन जिया। Same thing with every child of God. God makes
him wait for a long time. और ऐसे ही हर एक व्यक्ति के साथ होता है। हमें परमेश्वर बदलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ सदैव रहते हैं। So in the meantime, God changes our character. और परमेश्वर हमारे चरित्र को भी बदलते हैं। Moses thought he was quite capable at the age of 40, but God sent him to the desert for another 40 years. और मूसा जो था 40 वर्ष का था, पर परमेश्वर ने उसे भेज दिया था। And he had to live in his father-in-law's house for 40 years. और उनके ससुर के घर में उनको 40 वर्ष तक रहना पड़ा। God allowed him to wait. परमेश्वर ने उनकी जीवन में अनुमति दी कि वो रुके। But then God called him at the right time. और फिर सही समय पर मूसा को बुलाया गया, परमेश्वर ने बुलाया। And then also he always tests us whether we are going to obey him. और फिर वो परखते रहे परमेश्वर उनको कि मूसा को कि वो आज्ञा पालन करता है या नहीं। So at the age of 80, he was coming back to Egypt to rescue the children of Israel. और 80 वर्ष की उम्र में वो मिस्र लौटे कि इजराइलियों को बचा ले। He had two sons, and his wife Zipporah did not want to circumcise the son. और उनके 2 बेटे थे और उनकी पत्नी सपोरा जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो इधर आए। So Moses didn't want to displease his wife. और मूसा ने अपनी पत्नी को नाखुश किया। नाखुश नहीं किया, he did not want to displease his wife. वो नाखुश नहीं करना चाहते थे। And because of that, God was very angry with him, and God wanted to kill Moses. और इसी कारण परमेश्वर बहुत ही गुस्सा हुए और वो मार डालना चाहते थे मूसा को। But then Zipporah repented and she circumcised the two sons. और फिर सपोरा ने पश्चाताप किया और उसके दोनों पुत्र का खतना किया। हाँ। So this means that God wants us to be very close to him and obey him every day. और यही चाहते हैं परमेश्वर कि हम प्रभु के करीब रहें और हर एक आज्ञा का पालन करें हर एक दिन। If we disobey God, then God is not at all happy with us, and God will also forsake us. और यदि हम अनाज्ञाकारी रहते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होते, यहाँ तक कि हमें छोड़ भी देते हैं। So only when Moses obeyed, then God healed him and called him back to service in Egypt. क्योंकि जो मूसा था वो आज्ञाकारी था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया। So we see that we have to hate our father, mother, brothers, sisters, everybody else to please the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर एक को नफरत करनी, चाहे हमारे माता पिता भाई बहन, परमेश्वर को खुश रखने के लिए। So when we want to follow wholeheartedly, God will give us a longer trial, and then only He will use us, and He'll experience the closeness with God. और यदि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर हमें परखेंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी और हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। Sometimes even the essential things of life He will also delay. और कुछ ऐसी बातें भी होंगी हमारे जीवन में, वो होना आवश्यक होगी पर उसमें देरी हो जाएगी। I was just thinking about the children of Israel. I was reading Exodus, and the children of Israel had left Egypt. और हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने मिस्र को छोड़ा था जब। For 1 month, God did not give them any food at all. 1 महीने तक परमेश्वर ने उन्हें कोई भोजन नहीं दिया था। They had to, whatever food they carried from Egypt for 1 month, they had to eat that. और जो भी वो मिस्र से लेकर आए थे अपने खाने को, उसी को 1 महीने तक खाना पड़ा था उन्हें। Even when there was water shortage, God was testing them. They will complain or not complain. और जब पानी की कमी हुई उनको तो बहुत सारी शिकायतें वो लोग करते थे। But only Moses and Aaron did not complain. पर सिर्फ मूसा जो था और हारून था वो जो शिकायत नहीं करता था। This shows that Moses and Aaron and all had faith in God. Other people did not have much faith in God. और ये दिखाता है कि सिर्फ मूसा और हारून को विश्वास था परमेश्वर पे और बाकी लोगों को विश्वास नहीं था। So when we have faith in God, we will always thank God and never complain. और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो कभी शिकायत नहीं करेंगे। That is why in our lives, when difficulties and problems comes, God knows He works everything for our good. और जब भी तकलीफें हमारे जीवन में आती है तो हमें कहना है कि ये सब हमारे भले के लिए है। So we may not understand why things are happening, but we know, say, Lord, tell the Lord, I don't know, cannot understand what is happening to my life,
but I want to be close to you. I want to walk with you. जब भी तकलीफें आती है तो कहना है कि हम मुझे नहीं पता प्रभु कि ये क्यों आ रही है, पर मुझे ये पता है कि सब बातें मेरे लिए भलाई के लिए है। There'll be problems in the home, problems of the office, problems with your neighbors. All sorts of problems will come. सब प्रकार की तकलीफें आएंगी, चाहे हमारे घर में तकलीफ हो सकती है, हमारे कार्य करने की जगह पर, चाहे हमारे पड़ोसियों में तकलीफ हो सकती है, Even financial problems will come. और आर्थिक समस्याएं भी आएंगी। So many unbelievers also say, where is your God? और सारे अविश्वासी लोग कहेंगे कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। But we must tell, my God has done so much good for me. He has saved me from hell. He has given me life. I know everything He will do for me at the right time. और हमें कहना है कि परमेश्वर जो है, जिसने मुझे नरक से बचाया, उसने पहले ही मेरे लिए बड़े कामों को किया है, उसने मुझे बचा लिया है, और मुझे पता है कि वो सही समय पर मेरे लिए कार्य करेगा। This is what Job also said. Job also suffered so much, but he said, even if He kills me, I will not forget my God. और अय्यूब ने भी यही कहा था, उसको बहुत ही विश्वास था, और उसने कहा कि यदि मैं मर भी जाऊं तो परमेश्वर को नहीं भूलूंगा। Because this life is on the earth is not worth living. और उसका जो जीवन था वो जीने योग्य नहीं था इस पृथ्वी पर। So for all of us, this life, all the pleasures of this world, all the good things of this world are nothing compared to what God has prepared for us for all eternity. इस संसार की जितनी खुशियां हमें मिल जाए, जितना ऐशो आराम मिल जाए, पर वो उसकी तुलनात्मक में बहुत कम है जो परमेश्वर के पास हमारे लिए रखा हुआ है। All the people of this world and so many believers also are running for earthly pleasures and earthly comfort. बहुत सारे इस दुनिया के लोग, यहाँ तक कि विश्वासी भी इस संसार के आराम में, इस संसार की लुभावनी चीजों में दौड़ रहे हैं। And there is so much of jealousy and fighting and quarreling. God wants us to go away from these things, to work hard and to mind our own business and to seek after the kingdom of God first in our own life. और इस संसार में जलन है, कुड़कुड़ाहट है, शिकायतें हैं, बहुत सारी गंदी गंदी बातें हैं, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इसमें पड़े, पर प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढे, उसी का पीछा करें। Every day God has given to us, one day God has given to us, every day He has given to us as a gift. और हर एक दिन जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं वो एक उपहार है हमारे जीवन का। And through all the troubles and uncertainties and problems, we have to walk with God. और हर एक परिस्थिति में, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्याएं हो, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। All the other things God will arrange in His own time. और जो बाकी चीजें हमारे जीवन में, परमेश्वर उसको बिल्कुल ठीक करेंगे अपने समय पर। There's a song that we sing. God has not called me to understand, but to hold His hand. जैसे गीत को गाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ मुझे समझाने के लिए नहीं, पर मेरे हाथ को पकड़ने के लिए आया है। Yeah, we have to have just hold the hand of God and say, Lord, thank you that you are there with me. That is more than enough for me. और हमें परमेश्वर के हाथ को पकड़ना है और कहना है कि हाँ प्रभु, यही मेरे लिए काफी है, यही सबसे बढ़कर है। And as we sing in the song, तू काफी है मेरे लिए. और इस गीत को भी हम गाते हैं। So that is the most important thing, that God should be close to us, and when we die, we will go with God, and for all eternity we'll enjoy God. और हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में है, बस उतना ही काफी है हमारे लिए, और अनंत जीवन तक वो हमारे साथ है। So in all these different situations of life, through the problems, God can change our character and God can make us a blessing to all the people whom we meet. और जिसके साथ भी हम मिल रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए हमें आशीष बना सकते हैं, और हमें अलग अलग क्षेत्रों में बस परमेश्वर जितनी भी समस्या है उनके पीछे वो लेना है। So every day is a new day for us. हर एक दिन नया दिन है हमारे जीवन का। We can be a blessing to our father, mother, sisters, children, brothers and sisters in the church, our neighbors, friends, everybody. हम हर एक के लिए आशीष बन सकते हैं, अपने माता पिता के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हर एक के लिए आशीष बन सकते हैं हम। There are many people who celebrate this day, that day, Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day, Doctor's Day, all these days. But for every day, for us, that we have to be a blessing to all the people, whether they are mother, father, teacher, doctor, anybody. And we can be a blessing to them and be very appreciative to them. और हम इस संसार में लोग बहुत सारे दिनों को मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, टीचर्स डे, पर हमें सबके लिए एक आशीष बनना है, और हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है। So at the end of the day, we said, Lord, I finished my day today. I thank you, Lord, for all your help to me. Please help me to do better tomorrow. और अपने दिन के अंत में कहना है कि परमेश्वर, आज का दिन जो आपने दिया, मैंने इसको खत्म किया है, और अगला दिन जो है आपके अनुग्रह से मैं देख पाऊंगा।
God gives us a new day and we say, this is the day the Lord has made. और एक प्रभु हमें नया दिन देते हैं और इसमें ये जो दिन है वो परमेश्वर ने बनाया है। With all the troubles and problems, God is there with us. हर एक समस्या में, दुख तकलीफों में प्रभु हमारे साथ है। This is how we have to walk, brothers and sisters, day by day. और ऐसे ही चलना है भाइयों बहनों हमें दिन पर दिन। God will take care of all our future worries and problems, and whatever we have, He will take care, and in His own time He'll make everything beautiful. और हमारी जो भविष्य में आने वाली चिंताएं हैं या अभी की चिंताएं हैं, परमेश्वर उसका ख्याल रखेंगे, वो सब चीजों का ख्याल रखते हैं। We have to set our minds on the Lord and worship Him and praise Him and thank Him. हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, धन्यवाद करना है, स्तुति और महिमा करनी है। So one by one, when we take like this, our days will go, and we will just find that we are drawing closer and closer to the Lord. और हर एक दिन जब हम ऐसे बिताएंगे परमेश्वर में, तो हम देखेंगे कि प्रभु के और करीब हम आते जा रहे हैं। But if we are not faithful every day, then we go farther and farther away from the Lord. और यदि हम आज्ञाकारी नहीं रहते हैं हर एक दिन, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे परमेश्वर में। So many brothers and sisters have drifted away far from the Lord. बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। And because of that, their lives are full of misery, and there's no joy and peace and love in their heart. और इसलिए उनका जीवन बहुत निराशा में आ गई है, कोई शांति, कोई आनंद नहीं है उनके जीवन में। They're always grumbling, murmuring, fighting all the time. हमेशा लड़ते रहते हैं, शिकायतें करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं हर एक समय। And full of anxiety. बहुत सारी चिंताएं आ गई है उनके जीवन में। Because their mind is on earthly things. क्योंकि उनका जो मन है वो पृथ्वी पर लगा हुआ है। Not on Jesus. यीशु मसीह पर नहीं लगा हुआ। So let us always look to Jesus in all our problems. और इसलिए हमें परमेश्वर पर को देखना है हर एक परिस्थिति में। Problems will come, problems will go. समस्या आएंगी और समस्या चली भी जाएंगी। But we must draw close to the Lord and walk with Him. पर हमें परमेश्वर के पास आना है और उसके करीब रहना है। And we will get His character. और हमें उसका चरित्र हमारे जीवन में ले लेना है। So in the final day, we should say, Jesus should say, well done. और जब अंतिम दिन होगा तो परमेश्वर हमसे कहेंगे कि बहुत अच्छा किया। So every day God has given to us gifts. Let us be faithful every day, brothers and sisters. हर एक दिन परमेश्वर हमें उपहार दे रहे हैं, हमें आज्ञाकारिता से रहना है। So you can hear Brother Ratnaswamy share, and then other brothers and sisters can share. I think people who are outstation also can share. They don't get to share on Sundays. So everybody can take briefly and see how God is leading us from day to day, and how is God speaking to us and encouraging us. So ये सब हम लोग share कर सकते हैं एक एक करके। तो इसके आपका ब्रदर रत्नस्वामी करके ट्रांसलेशन होगा, बाकी लोग ब्रदर्स अपने आप शेयर कर दीजिए। I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। So obeying God brings blessing from God. और परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलती है उससे। Who will obey His voice? कौन उनकी आज्ञा का पालन करता है? Those who are humble and contrite spirit. जो अपने आप को दीन और नम्र बनाता है। Those who have complete faith in God. जिसके अंदर पूर्णतः विश्वास होता है प्रभु के लिए। So we have to fully believe in God, trust in God, then we will automatically obey His voice. हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस पर निर्भर होना है, फिर खुद से ही परमेश्वर पे आश्रित हो जाएंगे। Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Matthew chapter 18 verse 3. मत्ती एक मिनट Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. मत्ती 18 अध्याय ब्रदर वर्स 3 वर्स 3 तीसरा वचन, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे।
So faith is like child faith in his father. और एक विश्वास ये होता है कि एक छोटा बच्चा जैसे अपने पिता पर विश्वास करता है, उस तरीके से Complete depend upon God's guidance. पूरी तरीके से निर्भर हो जाना है परमेश्वर के ऊपर। And then please read Proverbs 3 verse 5, 6, 7, sister. यहाँ नीति वचन 3 अध्याय 5, 6, 7. 5, 6 और 7 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Yes, normally we are always wise in our own eyes, our own sight. और साधारण रूप से हमेशा यही होता है कि हम अपनी आंखों में अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं। It shows we are proud people. और ये बताता है कि हम बहुत घमंडी हैं। Humble people always depend upon God completely. और नम्र लोग जो होंगे वो हमेशा प्रभु के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होंगे। Then God will guide us. और फिर परमेश्वर की अगुवाई उनको मिलती है। Amen. आमीन। कोई ब्रदर्स भी शुरू करेंगे एक एक करके। वीडियो भी चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुदीप, पदवीर, संजय, ब्रदर्स भी है, राजू, जल्दी जल्दी शेयरिंग करेंगे तो सबको मौका भी मिलेगा। एनीथिंग? कोई भी शुरू कर सकता है। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी वचन पढ़ रहा था यूहन्ना के अध्याय 9 में, उसमें मैं वचन पढ़ता हूँ 25 और 31। यूहन्ना के अध्याय 9, 25 और 31। इसमें लिखा है, तब उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। वचन 31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भय मानने वाला हो और उसकी इच्छा पूरी करता हो तो वह उसकी सुनता है। तो ये वचन से मैं बहुत परेशान हुआ कि प्रभु यीशु ने उसको जो चंगा किया था, वो व्यक्ति उस समय नहीं जानता था कि किसने मुझे चंगा किया, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया, अब मैं देख सकता हूँ। तो उसे पूरा विश्वास आ गया था कि, और बाद में यीशु मसीह वहां पे आए और उसको बोले कि क्या तू विश्वास करता है? तो उसने बोला कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, तो जा फिर से पाप मत करना। तो इससे मालूम पड़ता है प्रभु ने मेरे हृदय में बात किया कि हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए मेरे लिए भलाई किया उसे हमेशा स्मरण रख के उनको धन्यवाद देना चाहिए। इवन जब 10 कोरी था तो उसमें एक कोरी ही लौट के प्रभु के पास आया था। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए कितना भला किया है। हम आशाहीन संसार में जी रहे थे, परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जी रहे थे, हर प्रकार के बुरे काम लालसा से किया करते थे, और अपना समय और सब चीजें हम ऐसे ही संसार में बर्बाद कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने हमें एक आशा दिया, प्रोत्साहन दिया, और उनको हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। इसमें व्यक्ति में लिखा है, वचन में लिखा है 31 में, कि दोज हु फियर द लॉर्ड गॉड, परमेश्वर उनको उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उनकी इच्छा पे जो चलता है उनको प्रोत्साहन देते हैं, संभालते हैं, उनकी प्रार्थना को भी उत्तर देते हैं। तो इन सब बातों से प्रभु ने मेरे हृदय से बात किया कि ऑलवेज वर्क विद गॉड इन फियर ऑफ गॉड। प्रभु के साथ संगति में चलो, और जो भी परमेश्वर ने हर दिन जो परमेश्वर भलाई करते हैं, हर संकट तकलीफ में, हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रेरित पौल भी कहता है सेकंड कुरिन्थियों में, जब 12 में 9, 10 में हम जानते हैं कि पौल कहता है कि प्रभु आपका अनुग्रह, प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए मेरे लिए काफी है। इसलिए हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को
मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। प्रभु ने ये बातें प्रोत्साहन दिया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। शुरू करो, शेयरिंग का भी ठीक है। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये एक वचन में पढ़ रहा था 2 कुरिन्थियों का 13:6 में, उसमें पौलुस कहता है कि पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसीलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसीलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। तो मैं ऐसा सोच रहा वचन पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब कि हम हर समय हमें भलाई करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी। जैसा अभी एक सॉन्ग गा रहे थे हम लोग, ब्रदर जय ब्रदर जो गाना गा रहे थे, उसमें हम लोग हमको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है। कुछ भी रहेगा तो भी हमें उसके साथ भलाई करना चाहिए। तो जैसा एक वचन भी है इसमें कि हम भलाई बुराई से हारे नहीं और बुराई को भलाई से जीत ले। तो ऐसा मैं सोचा था कि हर समय हमें भलाई करना चाहिए। तो आमीन। आमीन। So praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु ने जो उत्साह किया है मुझे। इब्रानी 10 अध्याय का 36 पद जो हमने पढ़ा था अभी, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 36 में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो ये वचन बोल रहा है कि हमें परिस्थिति जो भी हो, कैसा भी हो, तो हमें उस समय में जो है हमारा और ज्यादा हमें अपने आप को सतर्क रहना और हम अपने आप में ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की योजना के अंदर है या नहीं। यदि हम उस समय में क्या आता है कि हम मनुष्य के भरोसे रहते हैं, या हम मनुष्य के पास हम जो सहायता या मदद के लिए हम आस लगाए रहते हैं, या हमें जो जरूरत जो घटी कमी है उससे वो चीज हमें नहीं मिलता है, तो उसके द्वारा हम निराश हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें वो भटका देने वाली आत्मा काम करना शुरू कर देता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पौलुस भी समझा रहे हैं कि हमें उस समय भी हम लोग को धीरज धरना है, ताकि परिस्थिति कोई भी हो, ताकि हम लोग को निरंतर परमेश्वर की योजना के अंडर रह के परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें चलना है। तो इसी का रेफरेंस रोमी चैप्टर 5 वर्स 3 में भी लिखा है इस तरीके से, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और 4 में लिखा है धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और 5 में लिखा है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो परिस्थिति कोई भी हो, हमें परमेश्वर की योजना में, अगर हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो, हम लोग जब प्रार्थना भी करते हैं मॉर्निंग को, जो परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा सृष्टि में कोई भी पत्थर में, पेड़ में, कोई मूर्ति में पूरा नहीं होना है, वो हम लोग में पूरा होना है। परमेश्वर का संपूर्ण ध्यान केंद्रित हमारे ऊपर में है। परमेश्वर जीवते का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हम में वास करते हैं, हमारे साथ जो हम जो अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ में रहना हम चाहते हैं। तो परमेश्वर का योजना अगर हमें पूरा होना है तो हमें टूटने देना है, ताकि परिस्थिति जो भी हो हमें टूटने के लिए तैयार होना है। परमेश्वर तोड़ते हैं, उसके बाद फिर हमें बनाते हैं। तो हमें नम्र करना चाहते हैं परमेश्वर, तो नम्र और दीन लोगों को ही परमेश्वर जीवन देते हैं और अपना आशीष देते हैं। यहाँ में इस तरीके से समझ रहा था 3 में, जो धीरज धरने से ही हमारा, जो याकूब के पुस्तक में भी लिखा है 1 अध्याय में, जो धीरज को जो है अपना काम करने देना है। तो धीरज के द्वारा ही हमारा, जब हम लोग को टेस्ट होता है तो तभी हम लोग जान पाते हैं कि हम लोग कितने मजबूत है, अगली क्लास में प्रमोट होने के योग्य है या नहीं। तो वो धीरज से ही हम, हमारी वो परीक्षा, हमारी टेस्ट, वो एग्जाम जो होता है, उसी से हमारा निर्णय होता है कि हम आगे जाने के योग्य है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को जो है धीरज धर के उसको होने देना है। उसके बाद में हिब्रू के किताब में 12 अध्याय का 1 पद में भी इस तरीके से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है,
धीरज से दौड़े। ये दौड़ जो है जब तक धीरज या संयम हमें कोऑपरेट जब तक नहीं होता है तो हम लोग ये दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। हम लोग जो इधर-उधर देख के हमारे बाहर का वातावरण देखते हुए दूसरे मसीह को देखते हुए, दूसरे विश्वासी लोग को देखते हुए जब हम लोग एक कॉम्पिटिशन का इसमें चले जाते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाएँगे। तो परमेश्वर को हमें पूरी तरीके से काम करने देना है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। भजन संगीता नंबर 16 में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। तो हमारा जीवन में एक गीत आ जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, वो तो हमारा रोज दिन प्रतिदिन हम कर सकते हैं, कहीं भी वॉट एवर द सिचुएशन इज। कोई सिचुएशन खराब सिचुएशन में हम लोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा तभी तो सच्चा आराधना होता है, सच्चा स्तुति और आराधना। अभी तो मीटिंग में हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा अच्छा गीत भी है, म्यूजिक अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम जब अकेले रहते हैं तकलीफों में, प्रभु हम हमारा दिल प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। प्रभु और पाप को कबूल करके देखो तभी पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कैसा उंडेलेंगे और हमारा जीवन में इतना सारा आनंद आएंगे और प्रेम भी आ जाएंगे प्रभु के लिए, दूसरों के भी लिए। सो जो कोई भी हमारा जो घृणा है, हम लोग ब्लेम करते हैं इसको इधर, वो सब निकल जाएंगे। प्रभु कहते हैं ये तो मेरा, मैं तो नहीं करते हैं, तो आप भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभु की आनंद है हमारा ताकत। तो प्रभु की आनंद पवित्र आत्मा के बल से हमको मिलेंगे और हम कल की मुसीबतों को भी झेल सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी, और प्रभु हमारे साथ और करीब आ जाएंगे। ड्रॉ नियर टू गॉड, गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। हम प्रभु के और करीब आएंगे, प्रभु हमारे और करीब आते रहेंगे, हम प्रभु के साथ चलेंगे। वही सच्चा सच्चा जीवन, सच्चा मकसद है हमारा जीवन के लिए, और कुछ नहीं है। अब आएंगे नहीं आएंगे, पानी नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेंगे, कपड़ा नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, वो तो सब वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग। प्रभु हमारे साथ होना चाहिए, प्रभु की संगति ही होना चाहिए। तो लेट अस प्रे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ संगति में रहेंगे प्रभु जी। हम ये नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति प्रभु। हम फैमिलीज को भी आशीष दे प्रभु जी, और चर्च को और हर ब्रदर सिस्टर्स जो इकट्ठा होते हैं हमारे साथ प्रभु, कि आपकी संगति हम करें और आपकी आपको आराधना करें और स्तुति करें प्रभु जी, और आपकी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया, आमीन।